I just want to ask you one question. Have you ever driven an EV? If not, just drive one. What better? Drive the Tata Sierra EV. It is outstanding the way it drives over potholes, the pickup. You feel like it's a much bigger car. And it is nothing as you're driving an ICE vehicle. Electric is electric. Go for it. Try it out. I always wondered if the third screen was distracting for the driver. Well, good news. It is actually not. It just blends into the color. It's darker that side, so it doesn't distract you. Your vision actually ends right here. Oh, I'm just driving like a little child right now. Let's talk about this point also, in fact, See, now it's stopped. It's 40% now. It didn't show it earlier. Well, this car, the pickup is so amazing. You feel like a child again. You feel like you have a great toy in front of you. Well, an amazing balanced toy. Obviously, as we get older, the cars are basically toys for you, if you come to think of it. And when you put the pedal on, you put your foot on the pedal, you feel like a little child again wants to zip, zap, zoom, driving a racing car. Let's speak about the reasons of buying an EV in the first place. Well, if you're driving on about 1,500 to 2,000 kilometers every month, as compared to a petrol SUV of the same size, the cost will be significantly cheaper. Yes. And it's just an amazing vehicle to drive. The stability of the car, the gearless driving, the pickup is immense. It's a big family SUV. It depends on what you call big. It's actually a much decent size SUV. It doesn't look that big from outside, but it's very big because the wheelbase is longer. So there's a lot of space inside the vehicle in it. What else can I think of? The real world mileage people wonder about. I think I've driven to Gurgaon last night and it was 50% charged. It's only now 40%. 45, 50 kilometers was great. Didn't have any anxiety at all. If you come back home, charge your vehicle every alternate day, every third day, there's no anxiety at all. I also feel that this is the future technology. If you want to experience this, get an EV. It's amazing to just drive. The experience is spectacular. Yeah. So, Sachin, you're an EV expert. Just tell me, why should a customer buy Tata Sierra, right? And how is the economy in terms of savings every month? Well, if you're driving around about 1,500 to 2,000 kilometers every month, comparing it to a petrol SUV of the same size, an automatic one, which could be a turbo, because of the pickup is amazing here. You will not get this pickup in a regular engine. So a turbo mileage is much lesser than a regular petrol SUV. And an EV with the same pickup, amazing driving experience, this will be much cheaper. Much cheaper. सचिन, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है इस कार के साथ? आपने गाड़ी चलाई है काफी दिनों, तो बताइए। ये गाड़ी मेरे साथ पिछले 2-3 दिन के साथ मेरी गाड़ी मेरे साथ पिछले 2-3 दिन से है और मैं गुड़गांव तक गया हूँ दिल्ली से इस गाड़ी में। इनफैक्ट और सिटी ड्राइविंग बहुत सारी की है मैंने इसमें। ड्राइविंग एक्सपीरियंस हैज बीन अमेजिंग। हाईवे पे, छोटी लेन्स में, बैड रोड्स पे, मतलब बैड रोड्स पता लगता ही नहीं आपको कि बैड रोड्स है कहीं से। इट जस्ट गॉबल्स देम अप, निगल लेती है बैड रोड्स को। पिकअप अमेजिंग है। जब आपको पिकअप करनी होती है गाड़ी को तो आराम से पिकअप कर सकते हैं, ओवरटेक आराम से कर सकते हैं इस गाड़ी में। स्टेबिलिटी बहुत अमेजिंग है इस गाड़ी की। जब भी आपको लगे कि इस गाड़ी की स्टेबिलिटी अमेजिंग है, जब भी आपको फास्ट पिकअप करनी हो, किसी बड़ी गाड़ी के साथ आपको हल्का सा भी रेस करना हो, कोई मजा तो आता है उस चीजों में। So you don't feel like you're underpowered in any which way. You feel like you are stable, you grounded. The center of gravity is amazing because the battery pack is lower in this, and this is a
This is amazing the way they've managed the battery pack. I think this architecture can easily adapt to ICE and EV as well. So इसमें वो लगता नहीं कहीं से आपको इसके ये इस आइस व्हीकल में स्पेशली एक ईवी बनाई गई है. सो इसका वो अमेजिंग वेट के साथ गाड़ी में और स्टेबिलिटी आ जाती है. राइट. सो आप ये कह रहे हैं कि कोई अगर पेट्रोल चलाता है तो अगर ईवी पे शिफ्ट करेगा तो उसको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड रोड ड्राइविंग प्लेजर, राइट? इनफैक्ट इट गेट बेटर. ईवी से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो जाएगा as compared to if you drive an ICE of the Tata Sierra. And the pickup, firstly, there's no comparison. Even if you get the Hyperion engine, this is 500 Newton meters of torque. This has this has a dual motor setup. So it's just like you've got. अगर कोई आइस चला रहा है तो उसको सेविंग कैसे होती है? मतलब से फॉर एग्जांपल मेरी 1500 से 2000 किलोमीटर की रनिंग है पेट्रोल कार में, तो क्या डिफरेंस आएगा पेट्रोल चलाने में और इसमें पर किलोमीटर पे माइलेज में कितने रुपए का डिफरेंस आएगा? जमीन आसमान का फर्क आएगा. एक आइस पेट्रोल गाड़ी में अगर आप चलाते हैं 1500-200 किलोमीटर, जमीन आसमान का फर्क आएगा. एक आइस गाड़ी चलती है अप्रोक्सीमेटली 8.5 से 9 रुपए किलोमीटर के बीच में. और अगर इस गाड़ी को आप होम चार्ज कर रही हैं तो ये सिर्फ ₹1.25 कॉस्ट करेगी आपको पर किलोमीटर. इमेजिन 5 से 7 गुना का फर्क. वाह. A lot of people complain about the screen qualities of particular SUVs. In fact, some very big brands don't have the best screens. But in the Tata Sierra, the screens are impeccable. You know, it's just fantastic to see. I think they almost OLED quality here. इसमें क्या है मतलब ईवी कार्स में सारे फीचर्स आ रहे हैं. पर्टिकुलरली टाटा सियरा की बात करूं ईवी की, इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं मतलब हाईवे पे चलने के लिए? इनफैक्ट इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स हैं. 7 एयर बैग्स हैं इसके अंदर. एडएस तो है ही ऑफ कोर्स. लेन असिस्ट है. फॉलो मी होम हेडलाइट्स हैं. इनफैक्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम जस्ट क्रॉसिंग, आई एम ड्राइविंग, तो मुझे दिखा रहा है कि इस तरफ एक इंसान है, उस तरफ एक इंसान है. मुझे पता लग रहा है सामने. आई डोंट हैव टू लुक डाउन ऑन द स्पीडोमीटर, इट्स राइट ऑन माय स्क्रीन. और लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करता ये. हाईवे के लिए इनफैक्ट इतनी स्टेबल गाड़ी है, आपको फील ही नहीं होगा कि मतलब जो हम इंजन चलाते हैं, इनफैक्ट एक हम किसी और ब्रांड की बात करते हैं जो बहुत हल्की माइलेज वाली गाड़ियां बनाते हैं. अगर आप वो गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे, तो जमीन आसमान का फर्क है इस चीज में. तो आप बिल्कुल स्टेबल फील करते हैं. सो सेफ्टी कंसर्न्स नहीं है, सारे फीचर्स हैं. यस, एंड यू कैन ड्राइव सेफली. 100%. एंड व्हाट अबाउट ऑल दीज आई मीन टाटा in terms of styling and design, how do you see now? Say a command. No. या टाटा के एस्थेटिक्स और जो कन्वेंशनल टाटा कार्स थी, इट इज परसीव्ड इन द मार्केट बड़ी कॉमन ये है कि भाई एस्थेटिकली बहुत अच्छी नहीं है अंदर से बाहर से. बट ये नई टाटा सियरा ईवी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आई एम स्पीचलेस. मतलब मेरे पास कोई जुबान नहीं है बोलने के लिए. आई एम स्पीचलेस. मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मैं क्या क्या अच्छी बातें करूं उस गाड़ी के बारे में. जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, इसकी सीट्स इतनी कंफर्टेबल हैं. यू नो, इस बार दोबारा बात करते हैं. बट इस गाड़ी की स्टाइलिंग और इंटीरियर्स तो बहुत ही अमेजिंग है. डजंट लुक लाइक अ कन्वेंशनल एसयूवी एट ऑल. इनफैक्ट ये कन्वेंशनल भाषा तो कन्वेंशनल लगती है. 3 बॉक्स डिजाइन है. वो टाटा सियरा की लेगेसी है, पूरी दिखती है. टाटा ने वो मेंटेन किया है कि जो सियरा के फैंस हैं वो इसको देख के उसको याद तो आएगी टाटा सियरा की, बट एक बहुत ही मॉडर्न तरीके से याद आएगी कि भाई वो तो उस जमाने की टाटा सियरा थी, ये इस जमाने की टाटा सियरा है.
Completely modern inside. 3 screens है, ADAS है, all the features, the stability, the driving pleasure. उसके बारे में जितना भी बात करेंगे कम है. Well, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली लंबे लोगों के लिए, इसका एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट. देखिए ये गाड़ी में एक्सटेंड हो जाता है. मैं लंबा हूं, मेरे एक्चुअली ये नी तक आ गया है, तो लॉन्ग ड्राइव्स में बहुत अमेजिंग है. और एक और बात, इस वाली गाड़ी में डॉल्बी एटमॉस है, एंड दिस इज एक्चुअली द साउंड बार हियर, राइट हियर. सो अगर म्यूजिक लवर से कोई पार्टी करनी है, कहीं बाहर नहीं जाना, बस गाड़ी खोलिए, ऑन कीजिए, डॉल्बी एटमॉस चलाइए और गाड़ी में ही पार्टी कर लीजिए विदाउट ड्रिंकिंग दो. अमेजिंग वायरलेस चार्जर. पुट योर फोन राइट हियर, फोन भी गायब और साथ में चार्जिंग भी हो रही है. Voila, it's right here. सचिन, मेरे को बहुत कंसर्न रहता है कि पेट्रोल में तो आसान था कि एक टैंक भरवा लिया तो मुझे पता था इतने किलोमीटर चलेगी, बट इसमें हमेशा रेंज एंजाइटी रहती है, बहुत कम होता है. बट इसमें चलती कितना है? एक फुल चार्ज में टाटा सियरा ईवी अलग अलग बैटरी पैक से मेरे ख्याल से, तो कितना चलती है दोनों में एक चार्ज में? इनफैक्ट इसके 2 बैटरी पैक्स हैं, एक 63 किलोवाट आवर है और एक 75 किलोवाट आवर है. जो सिंगल मोटर जो टाटा से आ रहा है उसमें 63 वाले में चलेगी अप्रोक्सीमेटली 530 किलोमीटर और 75 वाले में चल जाएगी गाड़ी आपकी 660 किलोमीटर. सो अनरियल वर्ल्ड में आपको 500-550 तो कहीं भी नहीं गए. राइट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. सो कोई भी छोटे इंटरसिटी में आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से आगरा जाना है, तो आप एक सिंगल चार्ज में जाके वापस आ सकते हैं. 100%. मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ बात. इनफैक्ट यहाँ पे जो स्क्रीन है, अगर उससे बात करें, बता देगा आपको कितने घंटे में आप वहां तक पहुंच जाएंगे, कितनी चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है आपको, और रास्ते में जो भी चार्जेस आपको मिलते हैं वो आप एक्चुअली पहले प्री बुक कर सकते हैं टाटा मोटर्स की ऐप से ही सीधा. सो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट जाइए, एक क्विक कप ऑफ कॉफी या चाय पीजिए, उतनी देर में आपके पास फास्ट चार्जिंग है, तो आप आधे घंटे के अंदर आप इनफैक्ट 30-40% और चार्ज कर सकते हैं आराम से, एंड आगे चल पड़े काम पे. Let me show you the front of the car. All right. This is the Empowered Plus, and a pretty decent size. Can you use this space? Of course, it's pretty usable. In fact, you can keep your charging wire here, your charger here, lots of other stuff you can keep here. So it's if you look at it, this much is the depth, which is pretty good. की बैटरी है राइट है, सो कुछ चार्ज करना हो या बैटरी निकालनी हो आराम से निकाल सकते हैं उसको आप. और यहाँ पे इसका कूलेंट है, और लेट्स सी यहाँ पे क्या है. यहाँ पे आपका ब्रेक ऑयल है. सो नॉट टू मेनी सर्विसेबल पार्ट्स हियर. सो ऑफ कोर्स दैट्स हाउ एन ईवी बिकम्स लो मेंटेनेंस, हैंडलेस ऑपरेशन. कैसा झटका मारती है गाड़ी, बट इट्स ओके. अगेन अमेजिंग बूट. एग्जैक्टली ये 623 लीटर एक बूट स्पेस है इसके अंदर, मतलब आराम से 2 बड़े साइज बैग जा सकते हैं, एक छोटा साइज यहाँ बैग आ सकता है, डफल बैग ऊपर भी आ सकता है. इनफैक्ट ज्यादा सामान ऊपर मत रखिए, नहीं तो आपकी विजन में देखने में प्रॉब्लम होगी. बट इनफ बूट साइज फॉर अ मिड साइज फैमिली. The extendable thigh support that we were talking about. Right. How does it operate? So basically, there's a lever here. You can pull it back in, and you can pull it out. Very nice, interesting.